Aravali Hills. Once a young fold mountains, just like Himalayas, today they are an example of residual hill. So ऐसा कैसे हुआ? I mean, young fold mountains से residual hill? Yes, it happens, and not just with Aravallis. Rather, जो आज आपके fold mountains है, one of the youngest fold mountains, the Himalayas, over a long period of time, उनका भी wearing down होगा, right? They would be reduced in height over a period of time. This happens because of something called as exogenetic processes. So, I'm Ekta Agrawal, senior mentor from PrepEyes, and today I'll be telling you about the exogenetic processes. We'll study it from prelims point of view, right? Okay, so exogenetic processes. What are these? Exo. Exo का मतलब क्या है? This is something which is happening outside the Earth's surface, right? Okay, so exogenetic processes. Exogenetic processes का क्या मतलब होता है? Exo means that their origin जो है इनकी outside the Earth's surface है. Outside जब मैं बात कर रही हूँ, so it is what? It can be factors like climate. Okay, within climate मैं बात कर सकती हूँ temperature की. I can talk about precipitation. ठीक है? और अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ कि क्या ये जो फैक्टर है आउटसाइड द अर्थ सर्फेस, क्या ये आउटसाइड द प्लैनेट अर्थ हो सकता है? यस, अल्टीमेटली इट इज दैट सन की एनर्जी, राइट? द सन्स एनर्जी. ओके, इट कैन बी द ग्रेविटेशनल पुल, राइट? सो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो होते हैं जिनका ओरिजिन जो है आउटसाइड द अर्थ सर्फेस है. नाउ जैसे हमने अरावलीज की बात की या हमने हिमालयाज की बात की, तो इनकी जो वियरिंग डाउन होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस पीरियड इज वेरी लॉन्ग, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स जो ये होता है, वो होता है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस के कारण. हमने पढ़ा था एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस के बारे में, राइट? दे वर इन्वॉल्व इन क्रिएशन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट फॉर्म्स. नाउ एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस की अगर मैं नेचर की बात करूँ, so they are called as denudational. Denudational का मतलब क्या होता है? Wearing down. So जैसे Aravallis once young fold mountains थे, now over a period of time wearing down हुआ उनका because of the processes जैसा मैं आपको बताऊंगी, weathering के कारण, erosion, mass movement. So they are today reduced to what? Hills, residual hills. Okay, so if I go with the first statement, that first statement में कौन सा keyword important है? The keyword that says that below the earth's surface. This is wrong. It is outside the earth's surface. Right? Next. What is the second statement saying? The second statement says that compression and tensions जो है, they are examples of exogenetic forces. Now I'll tell you, exogenetic जो processes होते हैं, right? They are of different kinds. They are like weathering एक example है, erosion एक example है, mass movement एक example है. Now, what is the difference between these three? ये आपको पता होना चाहिए. यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग वेदरिंग से एक रिलेटेड क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है, राइट? सो वील सी. तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कंप्रेशन एंड टेंशन, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था, राइट? जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में देखा कि दो प्लेट्स हैं, दिस इज प्लेट 1, ओके, एंड दिस इज प्लेट 2. जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के क्लोजर आ रही हैं बिकॉज ऑफ द व्हाट, यहाँ पर आपके कन्वेक्शन करेंट्स है मेंटल में, बिकॉज ऑफ दिस अगर ये दो प्लेट्स क्लोजर आ रही है तो ये कोलाइड करेंगे. दिस प्रोसेस, इसमें जो पूरे ड्यूरेशन में जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, दिस इज कंप्रेशन, राइट? बट यहाँ पर क्या हो रहा है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजेनेटिक. वाई? बिकॉज इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? प्लीज टेल मी. इट इज द कन्वेक्शन करंट, ओके, which is generated by interior heat, right? The flow of the magma, the flow of the what? Magma inside the mantle, उसकी वजह से ये हो रहा है. So similarly आपका compression के जैसा होता है tension. Here the plates are moving away from each other. So both these kind of examples जो यहाँ दिए हुए हैं, these are examples of endogenetic, not exogenetic forces. So again, this statement is also wrong, and the answer is neither one and neither two, right? So exogenetic क्या होता है? We got it, okay? And compression and tension उसके examples नहीं है. Rather, we will see that the examples here we will see it. Now, as you can see, the question says that weathering, and the other side is the driving force, gravitational force. You can see that gravitational force दिया हुआ है, kinetic energy दी हुई है. सो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस जो है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, राइट,
what you need to remember here is that there are three kinds of denudational processes. First is weathering, second is mass movement, and third is erosional transportation or maybe simply erosion, right? So हम देखेंगे कि तीनों का मतलब क्या होता है. इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो वेदरिंग का क्या मतलब होता है? इट इज डिसइंटीग्रेशन. ओके, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, राइट. अगर मैं हिमालयाज की बात करूँ और आवलीज की बात करूँ तो उसके ऊपर जो रॉक सरफेस है कभी ना कभी उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इवन अभी भी हो रहा है. इट हैपन्स ऑल द टाइम. सो डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, वो फिजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है, और केमिकली भी हो सकता है कि रॉक जो है ब्रेक डाउन हो रही है, राइट. फिजिकली कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक रॉक सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर की लेयर अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेन्यूड हो जाती है, रिमूव हो जाती है, सो क्या होगी? अनलोडिंग एक्सपीरियंस करेगा वो रॉक सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि वो एक्सपैंड करेगा. इन दैट प्रोसेस जब वो काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा, रिपीटेड साइकिल्स जब चलती रहती है, तो ऊपर की लेयर्स जो होती है वो रिमूव होने लगती है, राइट. सो इसमें क्या हो रहा है? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, रॉक सरफेस जो है टूट रही है फिजिकल प्रोसेस के थ्रू. दूसरा हो सकता है केमिकल प्रोसेसेस. फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग. इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली आप देख रहे हैं एक रॉक सरफेस है, वी कैन सी द क्रैक्स. यहाँ हम देख रहे हैं एक जो पूरा कंप्लीट सरफेस था, नाउ वी कैन सी सम क्रैक्स ओवर हियर. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस क्रैक्स? बेसिकली ये जो सरफेस है, राइट, इट वुड बी कंपोज्ड ऑफ, इसका कोई मिनरल कॉम्पोजिशन होगा, राइट. नाउ व्हाट वुड हैपन इज कि बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो गई, तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो कॉम्पोजिशन है मिनरल्स, दैट वुड बी डिजॉल्व्ड. बिकॉज आपके एटमॉस्फेयर में लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो रेन वाटर के साथ वो मिक्स होके एक वीक एसिड बनाएगा, कार्बनिक एसिड. सो व्हाट कैन हैपन, जो इसमें मिनरल्स होंगे इस रॉक सरफेस में, स्ट्रेटा में, वो रिएक्ट करेंगे कार्बनिक एसिड के साथ, एंड जो उसमें डिजॉल्वेबल है दैट वुड बी वियर डाउन. डिजॉल्वेबल हो सकता है. दूसरे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रस्ट फॉर्मेशन, दैट इज अ काइंड ऑफ वेदरिंग. उसमें क्या होता है कि अगर आयरन रिच रॉक है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड उस प्रोसेस में वो क्या करेगा आपकी, दैट विल बी रिड्यूस्ड डाउन. ओके, द प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसमें आयरन ऑक्साइड, वो इजीली रिएक्टिव होता है एंड दैट कैन बी इजीली वेदर्ड डाउन बिकॉज दैट इज वीकर देन द ओरिजिनल मटेरियल, राइट. सिमिलरली आपने देखा लैंडस्लाइड्स हमने सुने होंगे, राइट. लैंडस्लाइड्स क्या है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मास मूवमेंट. That is again an example of what? Exogenetic processes. Now, आते हैं हम ड्राइविंग फोर्स पे. मैंने ये तो आपको बता दिया कि ओवरऑल जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज आउटसाइड द अर्थ सरफेस. नाउ आउटसाइड द अर्थ सरफेस काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है. इट कैन बी द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक ऑफ द सरफेस, राइट, और इट कैन बी ग्रेविटी, जैसे हमने लैंडस्लाइड्स में देखा. आपने नोटिस किया होगा कि वेस्टर्न घाट्स में, राइट, या फिर आपने देखा होगा कि इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वी ऑफन हियर कि जब मॉनसून सीजन होता है, हैवी प्रेसिपिटेशन, राइट, और सिंपली जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट, तो आप नॉर्दर्न हिल्स पे जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स. तो ये होता क्या है इसमें? लैंडस्लाइड्स में क्या हो रहा है, बेसिकली रॉक के पीसेस दैट एक्चुअली स्लाइडिंग डाउन अ स्टीप स्लोप. ओके, नॉर्मली वो स्टे कर रहे हैं बट वहाँ पर स्लोप फेलियर हो सकता है. वो स्लोप फेलियर हो सकता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण हो रहा हो, या वो स्लोप फेलियर हैवी प्रेसिपिटेशन की वजह से हो रहा है, राइट. आई टेल यू दैट इन डिटेल, बट यहाँ जो एक्शन है, स्लोप फेल हुआ, नाउ दैट रॉक पार्टिकल्स जो है, जो आपकी रॉक, जो आपका सर्फेस होगा, व्हाट विल हैपन कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण इट विल स्लाइड डाउन. सो दिस इज अ स्टीप हिल, ठीक है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से वेस्टर्न घाट्स, okay, here if I'm talking about this, so what can happen because of the heavy precipitation in this region? Heavy precipitation हुआ, heavy precipitation से क्या होगा? यहाँ पर lubrication होगा of the soil, okay. इस lubrication की वजह से या फिर intense construction activity हो सकती है, जैसे कि हमने northern में देखा था, right, heavy construction activities are going on there, या फिर मेघालयन region में जहाँ पर one of the highest rainfall होती है. So what can happen कि यहाँ जो rocks है, they can just slide down under the influence of gravity. Okay, so I can say that कि जो mass movement हो रहा है that is happening because of gravity. Now, if I ask you कि weathering किस वजह से हो रही है,
मैंने आपको बताया कि वेदरिंग में क्या हो रहा था, सोल्यूशन हो रहा था। सोल्यूशन में क्या हो रहा था कि जो आपका रॉक है उसके अंदर जो मिनरल्स हैं आइदर वो डिजॉल्व हो रहे थे या उनका कोई फॉर्म चेंज हो रहा था। जैसे हमने देखा ऑक्सीडेशन में फॉर्म चेंज हो रहा है। सो कैन आई से दैट कि मॉलिक्यूलर स्ट्रेस जो होगा वो एक फैक्टर हो सकता है। ओके अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी, आप बताइए कि देयर इज अ रॉक, ठीक है, विच इज़ वेरी लाइक बहुत ही रिएक्टिव नहीं है, ओके, विच इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव, उसमें जो मिनरल्स हैं वो ईजिली डेन्यूड नहीं होंगे। ओके इन कंपैरिजन टेक अ सर्फेस जो कि ईजिली डेन्यूडेबल है, वेरी रिएक्टिव, ओके, विच इज़ वीक इन इट्स स्ट्रक्चर। सो इन दैट केस व्हाट आई कैन से इज कि मोलिकुलर स्ट्रेस will actually be correlated to what? To the intensity of weathering. So can I say that कि जो weathering है उसका direct association है molecular stress से? Please tell me. Yes. The other is mass movement, हमने देखा it is directly related to gravitational force. You can remember landslides simply, right? Landslides का जो movement हो रहा है उसमें rocks का या avalanches में what is happening, एक snow का ball, right, along with soil and the other particles and the other sediments that is sliding down under the force of gravity, right? Next is erosion and transportation. Erosion का मतलब क्या होता है? Here basically the agents when I'm saying it is can be rivers हो सकती हैं, glaciers हो सकता है, winds हो सकता है. For example the Thar desert, there is a prominent role of the wind. तो winds जो है वो particles carry कर रही है. हमने सुना है ना कि ग्रीन बेल्ट लगाते हैं, ग्रीन बेल्ट क्यों लगा रहे हैं? डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए. वाई? बिकॉज विंड्स जो है वो सैंड पार्टिकल्स को कैरी करती है एंड दे आर ट्रांसपोर्टिंग इन टू द अदर रीजन्स, सो दैट द फोर प्रोडक्टिव जो एरियाज हैं, एरेबल एरियाज जो हैं, दे आर बिकमिंग डिजर्टिफाइड. सो इसलिए हम ग्रीन बेल्ट लगाते हैं सो दैट दैट मूवमेंट ऑफ विंड्स कैन बी कंट्रोल्ड. सो यहाँ जो विंड है दैट इज कॉल्ड एज अ एजेंट ऑफ इरोजन. तो इसके फैक्टर में अगर मैं बोलूँ कि ड्राइविंग फोर्स क्या है तो क्या है? इट इज काइनेटिक एनर्जी. इफ आई आस्क यू कि लेट्स से a river is carrying sediments along its path. Himalayas में हमने देखा वहाँ गैंगेटिक रिवर्स हैं, राइट? सो दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कैरिंग डाउन द सेडिमेंट्स. ओके सो वो पीक से सेडिमेंट्स कैरी करते हुए नीचे आ रही हैं प्लेन्स की तरफ. तो वहाँ पर कौन सा फोर्स एक्टिव है? ड्राइविंग फोर्स इज द व्हाट? इज द काइनेटिक एनर्जी. So if I ask you the answer to this question, it is weathering is associated with molecular stress, mass movement with gravitational force, and erosion with kinetic energy. Right. सो वी गॉट एन आइडिया कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस क्या है. एंड अब हमें ये समझ में आ चुका है कि कोई भी फिजिकल फीचर हमेशा सेम नहीं रहता है, ठीक है, वो कुछ और फॉर्मेशन में पहले होता है उसका ओरिजिन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस उसको वेयर डाउन करते जाते हैं. सो आई कैन से दैट इन शॉर्ट दैट कि लैंडफॉर्म्स की जो शेपिंग हो रही है, राइट, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस जो हमने पहले पढ़े हैं and exogenetic processes, right? So if you have any further doubt, if you want to ask me anything else, you can reach out to me on the Telegram channel, right? And you can subscribe to our channel for any further updates. Thank you.